हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? वेलकम टू फ़रहीन की दुनिया एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज था इस्तांबुल टर्की में हमारा दूसरा दिन और ये आपको जो नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि एक वाटर पैसेज है जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें जो है बड़ी बोट्स भी होती हैं, तो वो भी ट्रिप का मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं हागिया सोफिया देखने, जो कि एक बहुत ही फेमस मॉस्क है, और हम देखेंगे ब्लू मॉस्क, और उसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, जो लोग भी तुर्की के सीरियल्स देखते हैं, टर्किश सीरियल्स देखते हैं, उन लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आई होंगी जो उन लोगों ने सीरियल्स में देखी होगी। मैं कभी भी अभी तक मैंने कोई भी टर्किश सीरियल नहीं देखा है, टू बी ऑनेस्ट। तो अम्मी जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी बिकॉज़ शी वाज़ लाइक कि ये उर्तुगुल वाला सीरियल है। और यहाँ पे हमें ब्लू मॉस दिख रहा है, और हमने कोशिश करी थी कि हम जो हमारा कैब ड्राइवर है उसको हमने बोला था कि सबसे ज़्यादा जितना करीब में हम जा सकें हागिया सोफिया के, वहाँ पे हमें ड्रॉप ऑफ करिएगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली व्हील चेयर थी। तो जो सड़क है वहाँ पे हागिया सोफिया के पास, वो वैसी वाली नहीं है कि बहुत ही चिकनी सड़क हो जिस पे व्हील चेयर बहुत ईज़िली चल सके। इस तरह के ब्लॉक्स हैं, तो हमें कोशिश करनी थी कि जितने करीब हम जा सकें। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे उतर गए थे बिकॉज़ दैट वाज़ द नियरेस्ट। और अभी आपको जो नज़र आ रहा है वो है हागिया सोफिया मॉस्क। तो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं वो है हागिया सोफिया, जो कि पहले जब सबसे पहली दफ़ा इसे बनाया गया था, दैट वाज अ फॉर्म ऑफ अ चर्च। इट वाज देन कन्वर्टेड टू अ मॉस्क, और अब इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। This stunning building was an important monument for both the Byzantine and Ottoman empires. It was once a church, later a mosque, and now a museum. In 360 AD, the Hagia Sophia went under construction. At that time, Istanbul was known as Constantinople. The Byzantine Emperor Constantius commissioned the church to overlook the Golden Horn harbor. In 537 AD, after having to rebuild due to a fire, they held the first religious service in the new building. At this time, Emperor Justinian was ruling. The original plan for the building was to be an Orthodox Christian cathedral. Later, it converted into a mosque after the Ottoman conquest in 1453. The Hagia Sophia remained in the hands of Ottoman Empire for centuries. In 1934, it transformed into a museum. Today, Hagia Sophia is one of Turkey's most popular tourist sites. This monument alone attracts more than 3.7 million visitors a year. This is such a beautiful place to visit, defined by a large domed roof and a semi-domed altar. You can see the Hagia Sophia from miles away. Also, the dome's supporting arches are covered with mosaics of angels. The building measures 269 feet in length and 240 feet in width. The highest point of the building, the domed roof, reaches 180 feet into the air. The Hagia Sophia has over 104 columns. The Temple of Artemis in Ephesus donated the columns. The building reflects the religious changes that have played out in the region over the centuries, with the minarets and inscriptions of Islam as well as the lavish mosaics of Christianity. The Hagia Sophia Grand Mosque, with its innovative architecture, rich history, religious significance, and extraordinary characteristics, has been fighting against time for centuries, was the largest Eastern Roman church in Istanbul. Constructed 3 times in the same location, it is the world's oldest and fastest completed cathedral. With its breathtaking domes that look like hanging in the air, monolithic marble columns, and unparalleled mosaics, is one of the wonders of the world's architecture history. The sheer dazzling beauty of mosque, with its magnificent play on space, light, and color, provokes worship in the believer. Hagia Sophia poses on the ground of the first hill of Istanbul, precisely at the tip of historic peninsula, surrounded by the Sea of Marmara, the Bosphorus, and the Golden Horn on 3 sides.
तकरीबन डेढ़ 2 घंटा हम लोगों ने हागिया सोफिया में स्पेंड किया बिकॉज़ काफ़ी लंबी लाइन थी, बहुत सारे विज़िटर्स थे, बहुत सारे। उसके बाद फिर हम लोग ब्लू मॉस्क गए, जो कि हम लोगों ने आधे घंटे में ही फ़िनिश कर लिया। वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी लेकिन फटाफट हो गया और काफ़ी सारे विज़िटर्स थे ब्लू मॉस्क में भी। और बहुत अंग्रेज़ आते हैं, टू बी ऑनेस्ट टर्की में अंग्रेज़ विज़िटर्स इतने ज़्यादा हैं। और लास्ट में हम लोग गए हागिया सोफिया म्यूज़ियम में, जहाँ पे इन लोगों ने पूरा म्यूज़ियम क्रिएट करा है। विजुअल इफ़ेक्ट्स से पूरी हिस्ट्री बताई गई है हागिया सोफिया मॉस्क की, और उस ज़माने में कौन-कौन सी चीज़ें हुआ करती थी इस्तांबुल में। मतलब इट वाज़ रियली वेरी नाइस। तो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा एंड उसमें पूरा साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इट वाज़ एक्सीलेंट।
सबसे ज़्यादा मुझे म्यूज़ियम में ही अच्छा लगा बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। हागिया सोफ़िया की पूरी हिस्ट्री इन लोग ने पूरे विजुअल इफ़ेक्ट्स के साथ बताई थी, जो कि बहुत ही अच्छे से बताई थी। टू बी ऑनेस्ट मैं इतनी ज़्यादा उसमें गुम हो गई थी विजुअल इफ़ेक्ट्स में कि मैं इतना वीडियोज़ नहीं बना पाई, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। मतलब मैंने बीच-बीच में बनाया है वीडियो ऑफ़ कोर्स व्लॉगिंग के लिए, लेकिन मतलब प्रॉपर शुरू से आखिर तक मैं नहीं बना पाई। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हम लोग काफ़ी थक गए थे, तकरीबन 6-7 घंटे 8 घंटे आई थिंक 7 घंटे तो गुजर गए थे बिकॉज़ हम लोग ने हागिया सोफिया मॉस्क देखा, उसके बाद हमने ब्लू मस्जिद देखी, उसके बाद हम लोग म्यूज़ियम गए। म्यूज़ियम में भी तकरीबन 1.5 घंटा लगा। उसके बाद म्यूज़ियम के बाहर एक शॉप थी तो वहाँ मैं टहलने चली गई और बीच में हम लोग गुम भी हो गए थे। एक तरफ मोइज़ और मोइज़ की नानी चले गए, मैं कहीं किधर चली गई थी, बहन मेरी पता नहीं किधर चली गई थी। मतलब वो गुम हो गए थे एक्चुअली में, रास्ता इधर-उधर चले गए थे हम लोग। म्यूज़ियम बहुत बड़ा था तो फिर उसके बाद मुलाकात भी हो गई थी। ऐसी कोई डरने की बात नहीं कि कुंभ का मेला था और हम लोग गुम हो गए। तो दोस्तों नए व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस व्लॉग। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सबके साथ शेयर करिएगा और पूरा व्लॉग देखना ना भूलें। बाय, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।